morning, students. Today we are going to solve more problem on not-for-profit concern. Now, in previous problems, here we have seen about the not-for-profit concerns of different not-for-profit concerns, such as your schools, you have hospitals, you have sports club, you have libraries. So today in this video we are going to see how to do income and expenditure account and your balance sheet of a school. Okay, so let's do. Saraswati High School, Khed, showed the following position on 31st March 2018. Balance sheet as on 31st March 2018. Okay, they have given the balance sheet also. Now, why this balance sheet is given? So that we are able to find out the amount of capital fund, or what they do in receipts and payment account, they have some they don't have the assets, they have the assets in the balance sheet. So here in the liability side they have capital fund, that is 6,80,000, entrance fee 20,000, cash in hand 5,000, cash at bank 8,000, laboratory they have 15,000, building 6 lakh, furniture 40,000, books 22,000, tuition fees receivable 10,000. Okay, so this is the balance sheet. Then you have your receipts and payment account for the year ended 31st March 2019. Now here you must have seen the dates. Okay, here the balance sheet is on which date? It is on 31st March 2018. That means this is the opening balance of the assets and liabilities. And your receipts and payment account ends on which date? 31st March 2019. So on 31st March 2019 they have given, मतलब पूरे year का उन्होंने receipts and payments account दिया है. So on the receipts to balance brought down, cash 5,000, bank 8,000, total 13,000, ट्यूशन फीस 2017-18 मतलब जो अपना प्रीवियस है उसका ये है 8,000, करंट ईयर का 2018-19 का 1 लाख, सो 1,08,000. फाइन कलेक्टेड 2,000, एडमिशन फीस 10,000, टर्म फीस 7,000, डोनेशन टू लाइब्रेरी 1,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 5,000, गवर्नमेंट ग्रांट्स रेवेन्यू मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाए. ओके, सो ये याद रखना, रेवेन्यू मतलब इट विल कम इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. व्हेन इट इज स्पेसिफिक इट विल कम इन योर बैलेंस शीट. ये दो चीज़ें याद रखना, रेवेन्यू एंड जनरल. जब ये देते हैं रेवेन्यू है, जनरल है, दैट टाइम यू शुड नो दैट इट विल कम इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर income and expenditure account. And when it is specific it will come in your balance sheet. Then on your payment side you have salaries to teacher 1,80,000, salary to office staff 30,000, buy books purchase on 1/1/2019. मतलब अभी देखो यहाँ पे अपने बैलेंस शीट में बुक्स है, यहाँ पे देखो in your balance sheet you have books, that is how much? 40,000. And here there is buy books purchase on 1/1/2019. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बुक्स में एडिशन हो गया. सो यू हैव टू ऐड दैट बुक्स अमाउंट टू योर मेन बुक, ओरिजिनल बुक अमाउंट. ओके, देन buy printing and stationery 5,000, annual gathering expenses 10,000, office rent 16,000, repairs 15,000, sports expenses 5,000, furniture purchase on 1/7/2018. That means there is a furniture also that they have purchased, so there is additional furniture also, that is 50,000. Balance carried down, cash 8,000, bank 20,000. And they have given some depreciation, that is what? ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर. आउटस्टैंडिंग फॉर व्हाट? करंट ईयर. जब ट्यूशन फीस जो है आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं. एंड एडवांस मिला तो क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं. डेट इज हाउ मच? 5,000. सैलरी टू टीचर्स आउटस्टैंडिंग, देन व्हाट वी डू, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी. रेंट पेड इन एडवांस, व्हेन द रेंट इज पेड इन एडवांस दैट मीन्स इट इज प्रीपेड रेंट. रेंट एडवांस मतलब लेस करेंगे. Depreciate books at 15% per annum and 10% on furniture. Now अभी देखो यहाँ पे फर्नीचर दिया है कि सॉरी बुक्स कितना है, 40,000 है. नाउ यू हैव सीन हियर बुक्स यू हैव 40,000. ओके,
here you have 40,000 books, and here books are purchased on 1/1/2019. now this the 40,000 के जो books है ये पूरे साल के लिए यूज हो गए, so we will calculate full depreciation. But the books which were purchased on 1/1/2019, 1/1/2019 मतलब जनवरी में लिए है, so January, February, March, so it is how many months used? Only 3 months it is used, so we have to calculate depreciation separately and then add the depreciation. Same for the furniture also. यहाँ पे जो furniture है, the books are of 22,000 and furniture are of 40,000. Okay, there is a mistake, I thought it is this thing. So books are of 22,000 and furniture is of 40,000. तो जो हम लोग फर्नीचर कैलकुलेट करेंगे वो 40,000 के ऊपर पूरा करेंगे, और ये जो फर्नीचर है डेट इज़ 1/7/2018 में जो परचेज किया उसके ऊपर हम लोग कितने महीने का, नाउ सी 1/7 मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसके लिए हम लोग कितने महीने का करेंगे, वी विल कैलकुलेट फॉर 9 मंथ्स. ओके, तो 9 मंथ्स का हम लोग उसके ऊपर सेपरेटली करेंगे. वी विल सेपरेटली डू द कैलकुलेशन एंड देन वी विल एड इट. सो लेट्स डू द कैलकुलेशन. कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. एज आई टोल्ड यू पूरा डेप्रिसिएशन 40,000 के होगा, और 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होगा, जो 50,000 का जो परचेज किया. ओके, सो 10% depreciation on 40,000 will give you 4,000. 10% depreciation on 50,000 furniture which is purchased in between, that is 1/7/2019 1/7/2018 को जो परचेज किया था उसका क्या होगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12, क्योंकि वो सिर्फ 9 महीने यूज हो गए आउट ऑफ 12 मंथ. सो इट विल गिव यू हाउ मच, 3,750. टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 7,750. दिस इज द कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन. नाउ वी विल सी फॉर बुक्स. बुक्स पूरा बुक्स कितना है, 22,000, सो उसके ऊपर 15%, सो 3,300. एंड अनदर बुक्स विच वॉज परचेज ऑन 1/1/2019, इसके ऊपर सिर्फ 3 महीने का लगाएंगे. सो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12 विल गिव यू 563. टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 3,863. ये हो गया हमारा पूरा डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन. नाउ वी विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नाउ एज यू ऑल नो वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ड ऑन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट. सो हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट लेंगे. फर्स्ट वन इज व्हाट, विल टेक द पेमेंट साइड. हमारा जो पेमेंट साइड है वो ले लेंगे. सो फर्स्ट व्हाट वी हैव, सैलरी टू टीचर. नाउ ऑन दिस वी हैव अ adjustment, that is salary to teachers outstanding ₹15,000. so salary to teacher 1,80,000, salary to teacher 1,80,000. then this adjustment, that is add outstanding salary 15,000, will give you 1,95,000. then the second one is what sorry, by salary to office staff. so here to salary to office staff 30,000. then बाय बुक्स जो है वो क्या किया, परचेज किया. ना बुक्स इज व्हाट, बुक्स इज अ असेट, सो इट विल कम इन योर बैलेंस शीट. ओके, बट इसका जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा. देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाउ मच, 5,000. सो हियर to printing and stationery 5,000. then you have annual gathering expenses 10,000. to annual gathering expenses 10,000. then we have office rent. अभी ये जो ऑफिस रेंट है उसके ऊपर क्या है, प्रीपेड रेंट है. रेंट पेड इन एडवांस कितना है, रेंट पेड इन एडवांस 3,000. सो टू ऑफिस रेंट लेस प्रीपेड रेंट 3,000. 16,000 minus 3,000 will give you 13,000. then you have repairs. repairs कितने हैं, 15,000. so टू repairs 15,000.
देन यू हैव स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितने हैं 5000. सो टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 5000. फर्नीचर जो है वो कहाँ पे आएगा, इट विल कम इन योर बैलेंस शीट on the asset side. Now there is one thing, that is on furniture and on books we have calculated depreciation. So to depreciation on furnitures, total depreciation कितना है 7750 and on books के ऊपर कितने हैं 3863. टोटल कितना हुआ 11613 टोटल depreciation. ओके ना. नेक्स्ट वी हैव योर इनकम साइड में फर्स्ट क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक. ना दिस थिंग विल कम इन वेयर, इट विल कम इन योर बैलेंस शीट असेट साइड. ओके. देन उसके बाद ट्यूशन फीस कितना है, हमें क्या करना है, जब ऐसे 2-3 फिगर्स देते हैं पुराना नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, तो हमें सिर्फ करंट ईयर का लेना है. तो हमारा करंट ईयर का कितना है ट्यूशन फीस 1 लाख. सो ट्यूशन फीस 1 लाख यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है. देखो ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 5000. सो ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 5000, टोटल 1,05,000. ओके. देन फाइन कलेक्टेड. सो बाय फाइन कलेक्टेड 2000. एडमिशन फीस, बाय एडमिशन फीस 10,000. टर्म फीस, बाय टर्म फीस 7,000. डोनेशन फॉर द लाइब्रेरी. सो when there is donation for the library, so it is what, library is what your fixed asset. So this will come where, it will come in your balance sheet. okay. तो हमेशा लगना, अगर डोनेशन दिया होता और वो जनरल दिया होता या रेवेन्यू दिया होता तो वो कहाँ पे आता था, it would have come in the income statement, income side. But it is what, donation for to the library. So when it is library is what your fixed asset. So it is specific donation. ये आप लोगों को याद रखना. दे विल गिव यू लाइक दिस इनडायरेक्टली विदाउट एनी मतलब हिंट इन द ब्रैकेट कि वो स्पेसिफिक है या जनरल है या रेवेन्यू है, ऐसा नहीं देंगे. तो यू शुड नो दैट हमारा जो डोनेशन है वो क्या है, स्पेसिफिक है या रेवेन्यू है, दैट यू हैव नीड टू फाइंड. ओके. देन इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट. सो बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 5000. टू गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर उन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेवेन्यू करके दिया, सो इट विल कम इन योर इनकम साइड. सो बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स 2 लाख. Now you have to find the total of both the sides. Now when you do the total, your credit side is more than your debit side. So when your income is more than your expense, it is what, it is a surplus. So your credit side is how much, 3,29,000, and you have a difference how much, 44,387. So to surplus, excess of income over expenditure 44,387. ये हो गया आपका income and expenditure account. नेक्स्ट इज व्हाट, योर बैलेंस शीट. ना बैलेंस शीट का ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से आती है, इट विल कम फ्रॉम द बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट. सो first we will draw balance sheet as on 31st March 2019. Liabilities amount rupees, assets amount rupees. Okay. Then we have first thing is your capital fund. capital fund कितना है 6,80,000. to that we will add the surplus. कितने हैं 44,387. टोटल कितना होगा 7,24,387. देन यू हैव एंट्रेंस फीस कितने हैं 20,000. ओके. देन इन द प्रीवियस योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो डोनेशन था, इट वाज फॉर लाइब्रेरी. ओके. हाउ मच इट इज द डोनेशन जो था वो लाइब्रेरी के लिए था और वो कितना है 1,000 रुपये. सो इट विल कम ओवर यर इन द बैलेंस शीट. बाय डोनेशन फॉर लाइब्रेरी 1,000 रुपीज़. एंड आउटस्टैंडिंग जो सैलरी थी ना, व्हेन एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग, इट विल कम वेयर, इट विल कम इन योर लाइबिलिटी साइड. सो हमारे एडजस्टमेंट में हमें दिया था एक आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर. व्हेन द आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर, ये क्या है हमारा एक्सपेंस है. सो इट विल कम ओवर योर 15,000. नेक्स्ट सी द असेट साइड, दैट इज कैश इन हैंड 5,000.
और कैश एट बैंक कितना है 8,000 है. सो यर द अमाउंट मतलब जो हमारा कैश एट बैंक और कैश एट हैंड है यहाँ पे क्या दिया है जो हमारा ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वहाँ से लेना है. तो हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पे कितना है क्लोजिंग वाला 8,000 and 12,000. सो ऑलवेज टेक द योर व्हाट यू कॉल जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सॉरी द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं उसमें जो बैलेंस कैरीड डाउन है वही हमें हमारे नए बैलेंस शीट के लिए लेना है. सो योर 8,000 and 12,000. देन ट्यूशन फीस पुरानी कितनी है 2017-18 की how much 2,000 एंड 2018-19 की कितनी है 5,000 ट्यूशन फीस रिसीवेबल करके दिया था देखो. सो यार ट्यूशन फीस रिसीवेबल कितना है आउटस्टैंडिंग कितने हैं अपने 5,000 है. देन प्रीपेड रेंट 3,000. लाइब्रेरी कितनी लेबोरेटरी कितनी है 15,000. बिल्डिंग 6 लाख. फर्नीचर 40,000. टू दैट फर्नीचर विच इज़ परचेज्ड ऑन 1/7/2018 50,000. टोटल कितना हुआ 90,000. ऑन दैट वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कितना था हमारा डेप्रिसिएशन 7,750. आउटर कॉलम कितना आएगा 82,250. देन यू हैव बुक्स 22,000. टू दैट एड परचेजेस 15,000 कितना आया 37,000. अभी उसमें से क्या करना है हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है. सो 3,863 33,137 रुपीज़. टोटल कितना आया 7,60,387. सो दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन बैलेंस शीट. ओके सो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के जो प्रॉब्लम है दे आर वेरी इजी. ओनली थिंग यू नीड मोर प्रैक्टिस. हर एक का डिफरेंट रहता है. जैसे कि ये स्कूल का है तो स्कूल में क्या रहते हैं बुक्स ट्यूशन फीस एडमिशन फीस ऐसे रहते हैं. बट इफ़ यू कंसिडर हॉस्पिटल में थोड़ी बुक्स एंड ऑल रहते हैं. सो हॉस्पिटल में क्या रहते हैं योर मेडिकल चार्जेस मेडिकल फीस. देन यू हैव ट्रीटमेंट फीस. देन यू हैव ड्रग्स ये अपना स्टॉक ऑफ ड्रग्स. ओके तो ये सारी चीज़ें रहते हैं. इफ़ यू कंसिडर स्पोर्ट्स क्लब में क्या रहते हैं ट्रेनिंग एक्सपेंसेस ट्रेनिंग चार्जेस. देन यू हैव व्हाट यू कॉल्ड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऐसी चीज़. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग रहता है. सो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर कौन सा एक्सपेंस है कौन से असेट्स है ये हमें जानना है. स्कूल के लिए क्या होंगे टू टीचर्स के चार्जेस देन स्टूडेंट फीस ऐसे सारी चीज़ें रहते हैं. सो यू नीड मोर प्रैक्टिस इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. ओके I will take one more thing that is what Vyayam Shala. Okay, now this is what a gymnasium. So following is the summary of receipts and payments of Jai Hanuman Vyayam Shala Aurangabad for the year ended 31st March 2020. Receipts and payment account for the year ended 31st March 2020. Okay, so here you have receipts balance carry brought down 32,800. Subscription 2018-19 4,000 2019-20 2,30,000. Total 2,34,000. Donation 60,000. Receipts for entertainment 40,000. Interest on FD 3,000. Entrance fees 15,000. Income on investment 1,000. Then you have on the payment side by salary 50,000. By lighting 10,050. General expenses 20,000. Maintenance charges 40,000. Entertainment expenses 35,000. Printing and stationery 7,000. Expense for 2018-19 25,000. Investment 1,50,000 by 8% FD with Y Urban Bank Limited 50,000. By balance carried down 33,300. Now this balance which is carried down will come where in your balance sheet. This is the cash balance. Okay, then additional information. Jai Hanuman Vyamshala has 5,000
मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ हाउ मच 50 ईच. ओके, तो हमें क्या करना है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आएगा हमारा, ईयर वट एवर सब्सक्रिप्शन अमाउंट है जो हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. दैट इज 5,000 मल्टीप्लाई बाय 50. ये करेंगे तो हमें हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. सो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 50 विल गिव अस 50. जो हमारा टोटल है, ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, वे वी हैव टू शो इन योर बैलेंस शीट. ओके, योर बैलेंस शीट में जो हमारा हमें जो ये मिलने वाला है सब्सक्रिप्शन मेंबर्स, तो वो आ जाएगा यहाँ पे. देन यू हैव outstanding salary 12,000. Okay, then for on 1st April 2019 the assets stood as under land and building 70,000. अभी यहाँ पे land and building कितने हैं, here you have land and building, you don't have any, so here there is a extra land and building, that is 70,000. and furniture कितने हैं हमारे, here 45,000. depreciate the above asset at 10% per annum. so हमें यहाँ पे 10% निकालना है. so 70,000 पे 10% कितना आएगा, 7,000. and furniture is how much, 45,000, so 4,500. income occurred on investment 2,000. so income occurred on investment, that is 2,000. ये कहाँ पे आएगा, it will come in your balance sheet. okay, then occurred income को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं. then 50% एंट्रेंस फीस एंड 60% डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज. सो डोनेशन में से 60% एंड एंट्रेंस फी में से 50% कहाँ पे जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा. सो लेट्स डू द कैलकुलेशन. In the books of Jai Hanuman Vyamshala Aurangabad, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Okay, debit credit. So here in the expenditure side we'll take first, we have हमारा क्या है, वी हैव सैलरी how much, 50,000. एड आउटस्टैंडिंग सैलरी how much, 12,000. so 50,000 plus 12,000 will give you 62,000. then second is what, lighting. see the payment side. okay, lighting में कितना है, 10,500. so two lighting 10,500. then you have general expenses 20,000. so two general expenses 20,000. then maintenance charges कितने हैं, 40,000. so two maintenance charges 40,000. entertainment expenses 35,000. so two entertainment expenses 35,000. then you have printing and stationery 7,000. so two printing and stationery 7,000. then by expenses for 2018-19. okay, now these are what by expenses of 2018, our year is what, 2019-20. so it will not appear in your income and expenditure account. then you have investment. investment कहाँ पे आएगा, अपने बैलेंस शीट में. then you have FD. 8% fixed deposit with वाई अर्बन बैंक लिमिटेड. ना दिस FD का जो अमाउंट है वो कहाँ पे आएगा, ना इट इज़ FD मीन्स वर्ड योर असेट. ना असेट के ऊपर जब इनकम मिलता है वो कहाँ पे आएगा, इनकम अकाउंट में आ जाएगा. ओके, then balance brought down, so it will come in your balance sheet. now we'll check योर रिसिप्ट साइड. रिसिप्ट साइड में क्या है, दिस बैलेंस शीट, ये जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है, 2,30,000. सो बाय सब्सक्रिप्शन 2,30,000. ऑन डैट यू हैव टू कैलकुलेट दैट इज़ हाउ मच, हमारा जो सब्सक्रिप्शन है विच इज आउटस्टैंडिंग, दैट इज़ एड आउटस्टैंडिंग 20,000. सो ये हम लोगों को क्या करना है, 2,30,000 हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है. ओके, सो करंट ईयर इज और 2019-20, 2,30,000 प्लस हमारा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे देखो, जय हनुमान व्यायामशाला हैज़ 5,000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच. सो ईयर वट एवर जो कैलकुलेशन जो है हमारा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हमें कितना आएगा, 20,000 सब्सक्रिप्शन आ जाएगा. सो 2,50,000. then we have donation how much, 60,000, but there is a adjustment, that is what,
60% of the donation should be capitalized. So by donation 60,000 less 60% capitalized 36,000. Okay, so total कितना आएगा 24,000. Then you have receipts on entertainment. So by receipts from entertainment 40,000. इनकम ऑन एंट्रेंस फीस जो है, एंट्रेंस फीस है उसके ऊपर हमें क्या करना है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन एफडी है, उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दे हैव जम्बल्ड इट. सो ईयर फर्स्ट हमें क्या लेंगे हम लोग, इंटरेस्ट, हम लोग वी विल गो लाइन बाय लाइन. सो इंटरेस्ट ऑन एफडी, सो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है 3,000 प्लस यहाँ पे क्या है 8% एफडी विद वाई अर्बन बैंक दिया. सो 8% ऑन 50,000 कितना आएगा 1,000. सो एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000. सो 4,000 रुपीज़ हो गए. देन यू हैव एंट्रेंस फीस. सो बाय एंट्रेंस फीस 50,000, उसके ऊपर 50% क्या करना है कैपिटलाइज करना है. सो लेस 50% कैपिटलाइज 25,000 आउटर कॉलम 25,000. देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने हैं 2,000. सो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है, यू हैव 1,000 एंड इनकम अकर्ड दैट इज ऑफ 2,000. सो आउटस्टैंडिंग हाउ मच 2,000, 3,000 टोटल. ओके, सो इंटरेस्ट अकर्ड हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, इट इज़ लाइक आउटस्टैंडिंग इनकम. ओके, सो ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर. देन यू हैव यर लेट्स सी ऑल द दिस थिंग इज डन एडजस्टमेंट. हम लोगों ने ये किया 5,000 50 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया. नाउ यर देर इज़ अ डेप्रिसिएशन. सो 10% डेप्रिसिएशन हमें कितना आया, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 7,000 एंड फर्नीचर के ऊपर 4,500. सो टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 7,000, फर्नीचर 4,500, टोटल कितने हैं 11,500. देन इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ले लिया, 50% एंट्रेंस फीस, 60% डोनेशन इज ऑल्सो टेकन. सो क्रेडिट साइड 3,46,000, डेबिट साइड 3,46,000, टोटल डिफरेंस कितना आया 1,60,000. सो योर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ये हो गया. देन यू हैव योर बैलेंस शीट. तो उसके पहले हमें क्या करना है, वी हैव नॉट गिवन द कैपिटल फंड, हमें कैपिटल फंड कितना है नहीं दिया. सो वी नीड टू कैलकुलेट कैपिटल फंड. नाउ कैपिटल फंड कहाँ से आएगा, जो हमारे असेट्स है वहाँ से आएंगे. तो ऑन योर बैलेंस शीट यू हैव व्हाट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, डेट इज़ जय हनुमान व्यायामशाला हैज़ 5,000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच. तो कितना आएगा यहाँ पे, सो योर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 50 विल गिव यू 25,000. ओके, देन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितने हैं, द ओपनिंग बैलेंस दैट इज 32,800. देन यू हैव आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट ईयर दैट इज 2018-19 4,000. न्यू बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग वॉज इंट्रोड्यूस दैट इज 70,000 एंड फर्नीचर 45,000. टोटल कितना आया 1,51,800. नाउ व्हेन यू डिडक्ट 1,51,800 फ्रॉम 25,000 you get 1,26,800. दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर. ओके, तो हमें कैपिटल फंड मिल गया. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा now we have to do our balance sheet. okay, so ये जो हमारा कैपिटल फंड कैलकुलेट होने के बाद now we have to do the बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट देखते हैं. हियर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 असेट्स एंड लाइबिलिटीज़. सो लाइबिलिटीज़ में देखते हैं, सॉरी लाइबिलिटीज़ में देखते हैं कैपिटल फंड कितना मिला 1,26,800. टू डैट एड एंट्रेंस फीस 25,000, 60% डोनेशन भी ऐड करेंगे 36,000 एंड सरप्लस कितने हैं 1,60,000. सो 3,47,800. आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 12,000. हियर इट इज़ गिवन आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000. सो 12,000. देन यू हैव ऑन द असेट साइड कैश इन हैंड कितने हैं 33,300, 33,300. इन्वेस्टमेंट कितना है 1,50,000. एड एक्रूड, एक्रूड कितना है 2,000. सो 2,000, 2,52,000. 8% एफडी कितनी है 50,000. टू डैट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है कितना है 1,000 इंटरेस्ट है. 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8%.
सो 51,000. देन यू हैव आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 20,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे. देन लैंड एंड बिल्डिंग इज हाउ मच land and building is 70,000. To that depreciation 10% 63,000. Furniture 45,000. On that less depreciation 4,500 45,000 के ऊपर 40,500. So total when you do you get 3,59,800 on the asset side and the liability side. So this is how your problem is done of व्यायामशाला is gymnasium. Okay, तो यहाँ पे बहुत सारे different organization है, not for profit organization are different. So you have to know where the things will come, which is your expense, which is your income. Okay, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है. For that to know you need to practice more. Okay, so in the next class we will solve more problem on income and expenditure account.